Today we will learn chapter number 31, genetics of psychosis. हमने जेनेटिक्स ऑफ सोरा देखे, नाउ जेनेटिक्स ऑफ साइकोसिस. तो साइकोसिस का जेनेटिक्स कैसा होता है, क्या होता है, क्यों मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होता है, जनरेशन ऑफ सेल्स होता है. ओके, सो जेनेटिक्स ऑफ साइकोसिस. Psychosis is proliferation of cells as well as other products. This shows problem with cell division, control and protein growth factor. Yes, to understand probable cause of psychosis, we need to understand cell division. Yes, तो psychosis अगर हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि सेल डिवीजन क्या है, हाउ इट इज रेगुलेटेड. यस, सो सेल डिवीजन समझ अगर आपको समझ में आता है तो साइकोसिस, रियल साइकोसिस डिफेंस समझ में आएगा. सो सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम. सेल cycle control system. So the cell cycle comprises of two phases. First phase is mitotic phase, wherein the cell actually divides 1:2, 1 से 2 बन जाना. Resting phase, wherein the cell prepares for the mitotic division. So these are two phases: mitotic phase where cell actually divides, and second is resting phase where mitotic division के लिए cell prepare हो जाता है. So the mitotic phase consists of prophase, metaphase, anaphase and telophase. These are 4 phases. The resting phase is also known as interphase, where DNA replication takes place. The interphase is divided into 3 phases. So किस तरह से DNA फॉर्म होता है, बनता है. उसके बाद G1S and G2. Every cell which has 2 duplicate has to undergo these above phases. During G1 phase, the cell monitors its environment and its own size. मतलब डिवाइडेशन के पहले सेल पूरी तरह से प्रिपेयर है कि नहीं, ये चेक करना, दैट इज G1 फेज. अगर सेल कंप्लीटली ओके है, हेल्दी है और डिवाइड होने के लिए रेडी है, तो इस सेल से वो पास, इस फेज से वो पास होगा G1. सो द सेल मॉनिटर्स इट्स इन्वायरमेंट एंड इट्स ओन साइज. इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड द सेल इज फाउंड फिट इनफ, it is allowed to proceed to the yes phase. So अगर वो healthy है, पूरी तरह से नॉर्मल है, देखो नेचुरल प्रोसेस कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी बढ़िया होती है. नेचर ने कितना अच्छी तरह से ये प्रोग्राम बना के रखा है सेल जनरेशन का, कि कोई भी सेल एबनॉर्मल है तो वो आगे की प्रोसेस में जाएगा ही नहीं, डिवाइडेशन होगा ही नहीं सेल का, 1 से 2 सेल बनेंगे नहीं. अगर वो पूरी तरह से नॉर्मल है, हेल्दी है, तो ही वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है उसका डिवीजन होने के लिए. तो ये नेचुरल कंट्रोल है, नेचर ने इसे अपने कंट्रोल में लिया, और नेचर का कितना अच्छा कंट्रोल है, इतना अच्छी तरह से तो हम भी नहीं कर पाते. और ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस अपने बॉडी में 24 आवर्स चलते रहती है. यस, सो the cell monitors its environment and its own size. If everything is normal and the cell is found it fit enough, it allows to proceed to the S phase. In S phase, DNA replication takes place. That means the cell gets ready for 1:2 multiplication genetically. So why it is genetically? Because उस सेल में genes also become 1:2. जीन्स आल्सो डिवाइड होते हैं 1 से 2 सेल्स में. यस, सो दिस इज द एस फेज.
जहां डीएनए रिप्लिकेशन होता है। पहले हमने देखा है आरएनए रिप्लिकेशन, नाउ डीएनए रिप्लिकेशन। सो आफ्टर एस फेज in G2 phase, gate 2, the cell ensures DNA replication is complete and proper। तो S फेज में जाने के बाद वहाँ वापस चेकिंग होगा सेल का, उसके बाद DNA रिप्लिकेशन होगा और DNA रिप्लिकेशन के बाद इट गोज इनटू द फेज G2 एंड इन G2 रिप्लिकेशन इज कंप्लीट एंड प्रॉपरली इट ऑकर। यस, सो वो completely and properly इस फेज में होगा एंड ओनली देन द सेल इज अलाउड टू प्रोसीड M phase, that is mitosis phase। So in every cell which divides by mitosis into two of its own kind, that is also called as ditto, क्लोन, बराबर उसी सेल के जैसे और दो सेल तैयार होंगे by certain proteins cyclin dependent kinase, that is CDK1, CDK2, CDK3 etc. In this resting phase we have two checkpoints, that is G1 and G2, gate 1 and gate 2. G1 checkpoint regulates and controls the entry into S phase. G2 checkpoint regulates and controls the entry just before cell enters mitosis. The G1 checkpoint ensures that every cell has optimum growth and optimum cell environment. G1 का क्या काम है? गेट 1 से अगर आपको पास होना है, सेल को पास होना है, तो वो completely हेल्दी होना जरूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी कमी है, प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। सो इफ द सेल passes through G1 checkpoint, it replicates the DNA from 1 to 2, that is the cell control or proliferation lies in G1 checkpoint. If the cell are going in for more replication, G1 checkpoint checks them and does not allow them to proceed। yes, तो उन्हें उस गेट से पास ही नहीं होंगे अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सो देयर आर सर्टन साइक्लिन डिपेंडेंस काइनेजेस, namely CDK2, which combines with cyclin E to help the cell to overcome the G1 checkpoint or pass the checkpoint even if cell does not have proper growth। yes, तो वहीं पे उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उसे पास होने ही नहीं दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें ग्रोथ के लिए या फिर सेल डिवीजन के लिए उसमें प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो वहाँ से आउट हो जाएगा। यस, दिस इज प्रोबेबली द स्टार्ट ऑफ साइकोसिस। हियर द सेल ट्राइज टू प्राइब its way or manipulate its way through the checkpoint and hence tries to synthesize more DNA so that more than 2 cells are produced. This is the start of proliferation. Excessive cell production, excessive production or synthesis of protein and enzyme, thus probably psychosis sets in. The psychotic constitution probably has more of this CDK2 and cyclin E combination, which makes them undergo multiplication or depends by construction since birth। तो कितनी नेचुरल प्रोसेस है, कितनी एक्सलेंट प्रोसेस बॉडी में होती है, हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। अगर हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता चल रहा है कि किस तरह से बॉडी में सेल डिवीजन होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल होता है। तो सपोज यहाँ पे अगर G1, G2, S फेज ने अगर प्रॉपरली वर्क नहीं किया, अगर ये ब्राइब लेते हैं, मतलब कुछ तभी वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है गेट 1, गेट 2 पे या फिर एस फेज में, तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल सेल्स अंदर चले जाएंगे और एबनॉर्मल सेल्स जब अंदर जाते हैं तब वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाती है।
सो जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें यही प्रोसेस होती है कि G1 G2 एस फेज में प्रॉपर वर्क नहीं होता है, एबनॉर्मल सेल्स वहाँ जाते हैं जिसमें जीन्स म्यूटेशन होता है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मोस्टली कैंसरस केसेस में भी ऐसा ही होता है, जीन म्यूटेशन होता है और वहाँ पे मतलब एबनॉर्मल सेल्स जाके एबनॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यस, so a person having predominantly psoric miasm may be supposed by drugs or other factors and G1 checkpoint could be overcome, thus leading to psychosis. This is a probable explanation of children going from recurrent inflammatory disease to psychotic disease after operation of tonsillitis and appendicitis. Yes, इसीलिए देखो प्रोमोट कैसे हो रहा साइकोसिस, जैसे ही सोरा सप्रेस हो जाएगा, जैसे ही सोरिक डिफेंस वहाँ फिनिश हो जाएगा, इट गोज इनटू और इट ट्रांसफर इनटू साइकोसिस, और साइकोसिस में फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स स्टार्ट्स। तो जैसे ही टॉन्सिलाइटिस सप्रेस होता है या फिर ऑपरेशन करके पेशेंट का सोरा सप्रेस किया जाता है या फिर हायर एंटीबायोटिक्स या फिर रॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन जिसकी वजह से सोरा सप्रेस होके साइकोसिस गेट स्टार्ट स्टिमुलेटेड एंड ओवर ग्रोथ स्टार्ट। उसके बाद पेशेंट फील्स, द चाइल्ड फील्स डलनेस एंड ओबेसिटी। So many patients start becoming fat after delivery, yes, or after major operation or after acute inflammatory diseases like typhoid, pneumonia, hepatitis. This is when the psychosis gene is activated in the person, we homeopaths also suppress. In cancers too, it is the G1 checkpoint which has been seen to be defective. Yes. So अभी मैंने बताया कि G1 G2 S फेज में अगर कुछ भ्रष्टाचार होता है, ऑनेस्टी वहाँ नहीं होती है, ऑनेस्टली वो अगर उनका काम नहीं करते हैं तो डिफेक्टिव सेल्स अंदर जाएंगे और वहाँ पे सेल का जीन्स का म्यूटेशन होगा, एबनॉर्मल सेल्स प्रोडक्शन स्टार्ट होगा एंड इट विल कॉजेज जेनेटिक डिफिशियंसी और कैंसर लाइक डिजीजेस। सो बट one gene giving rise to multiplication tendency, that is overcoming of G1 checkpoint, is the same as what is probably called photo-oncogene. One oncogene does not necessarily cause cancer. It requires minimum 2 oncogenes to cause cancer in a person. Presence of one oncogene stands for cancerous diathesis, मतलब वहाँ डायथीसिस आया है, एक सेल अगर ऑन्कोजीन वहाँ प्रेजेंट है तो इट इज़ नॉट अ कैंसर पेशेंट और कैंसर डिजीज, बट कैंसर डिजीज कंफर्म करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए वहाँ 2 ऑन्कोजीन होना जरूरी है। और अगर 2 नहीं है, 1 है तो वो कैंसरस डायथेसिस हो गया। यस, सो द जीन ऑफ proliferation is responsible to police the normal cell. There is another gene called gene P53 which acts as a brake on excess cell proliferation. Gene of proliferation can be either inherited from the parents or acquired during lifetime by process of reverse transcription. Those who inherit are psychotic constitution. So this process of multiplication of cell is called psychosis. So this is the genetic of psychosis. तो किस तरह से psychosis start होता है? जब नॉर्मल अगर सेल डिवाइड हो रहे हैं 1:2, इट इज नॉर्मल, इट इज नेचुरल प्रोसेस, बट व्हेन इट बिकम्स डिफेक्टिव 1:3, 1:4, 1:5, देन इट इज कॉल्ड साइकोटिक डिफेंस बिकम फेल एंड साइकोसिस डिजीज स्टार्ट। यस, so this is the genetics of psychosis. Now we will see the
32 chapter, that is the genetic of cancer, how cancers are किस तरह से कैंसर्स स्टार्ट होता है, कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट होती है, कैंसर्स में जीन्स डिफेक्टिव बन जाते हैं, किस तरह से म्यूटेशन होता है, तो हम इसमें देखेंगे जेनेटिक्स ऑफ कैंसर में ये सब बातें। सो कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, जहाँ जीन म्यूटेट होता है। सो व्हेन जेनेटिक म्यूटेशन टेक्स प्लेस, देयर इज जीन कॉल्ड P53 which acts as a brake on excess cell proliferation. Abnormal excess cell proliferation generation is called the mutation of P53, and uncontrolled production, that is the cancer. So not allowing mutated to go further in the cell cycle. This prevents malignancy. When P53 gene is defective, that is when the cell break fails, the mutated cells proliferates. Yes, mutated cells proliferated, मतलब जो एबनॉर्मल सेल्स गए उनका ही प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो रिप्रोडक्शन होगा, जितना भी वहाँ पे सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज आल्सो द एबनॉर्मल, दैट इज द प्रोटो-ऑन्कोजीन टर्न्स इनटू ऑन्कोजीन. We understand that our constitution is based on genetic code, which has represented of our physical and mental character. If a part of proto-oncogene is replaced by DNA, which has been reversely transcribed, a new oncogene is formed. Cancer can be formed only if there is two such oncogenes. ओनली वन ऑन्कोजीन है तो वो पेशेंट कैरियर होगा, उसका कैरियर होगा, बट नॉट अ पेशेंट. यस, वहाँ पे हम कैरियर को कहते हैं डाइथेसिस. दिस इज समथिंग लाइक फ्रॉम अ थिक बुक ऑफ रॉबिन्स पैथोलॉजी. अ few pages have been removed and replaced by pages of Kent Materia Medica. This is called म्यूटेशन. कि जो ये ओरिजिनल बुक है, ये ओरिजिनल बुक है, और इस बुक अभी ये प्योर है, ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है. दिस इज ओरिजिनल बुक. बट इसे हम कैंसरस कैसे बना सकते हैं, इस बुक को कैंसर कैसे होगा? तो क्या होता है, सिंपली ये जो ओरिजिनल बुक है इसमें से कुछ लाइक दिस, कि इसमें से कुछ पेजेस हमने निकाल दिए, ये पेजेस हमने निकाल दिए, और इसमें दूसरे अनादर बुक के पेजेस इसमें डाल दिए, लगा दिए एज इट इज, ऊपर से दिखने के लिए सेम, ऊपर से आपको सेम दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक कवर सब कलर ओके, बट अंदर कुछ अलग ही मटेरियल, मतलब वहाँ पे म्यूटेटेड जीन्स आ गया, जीन्स म्यूटेट हो गया, एक से दूसरे इसमें चलेगा और दूसरा वहाँ आ गया, डुप्लीकेट बैठ गया आके, दैट इज द ग्रोथ ऑफ कैंसर. यस, so cancer can be formed only if there are two such oncogene. This is something like from a thick book of Robbins pathology. A few pages have been removed and replaced by page of Kent Materia Medica. The book does not make sense in this state. It is no more Robbins book of pathology. Yes, जब इसमें से बुक चले गए और दूसरे बुक के पेजेस इसमें से आ गया, मतलब ओरिजिनल डाटा ये डिस्टर्ब हो गया, ओरिजिनल डाटा के जगह दूसरा डाटा आके बैठ गया. दैट मीन्स have been removed and replaced by Kent Materia Medica. The book does not make sense in this state. It is no more Robbins book of Materia Medica, Robbins book of pathology. Yes, ना वो Robbins book of pathology रहा, ना Materia Medica रहा. जैसे इस बुक से जो पेजेस निकाले, अब ये ना बुक माइजम का रहेगा और ना वो बुक रहेगा, कंप्लीट कुछ भी नहीं, मतलब बिकम एबनॉर्मल. It is not normal. Yes,
So it is no more Robbins book of pathology. Same is the case with cancer patient with genetic mutation. Thus in cancer patient too, the basic characters of original constitution are not helpful to prescribe upon. Each genetic alteration may cause phenotypic changes. Yes, देखो, each genetic alteration may cause phenotypic changes typified by the progression in epithelial tissue from hyperplasia to adenoma to dysplasia to carcinoma in situ to invasive carcinoma. Yes, तो अगर ओरिजिनली पेशेंट कैंसर का है तो वहाँ म्यूटेशन होना जरूरी है. यस, सो अगर वो कंप्लीटली सिप्लिटिक, अगर वहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है सेल्स का, जीन्स का म्यूटेशन हो रहा है, तो इट इज़ प्योर सिप्लिटिक कैंसर. अगर वहाँ ओनली ग्रोथ है, जीन म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो it is benign tumors or benign growth. So cells have evolved mechanism to resist neoplastic transformation. When this mechanism is distorted, the cell grow out of control. This means the defense mechanism has failed, breaks have gone. This amounts to syphilis. Thus cancer is at a genetic level a syphilitic disease. So the out of control यहाँ क्या है? That is the production of abnormal cells is destructive process. But same cells, healthy cells form हो रहे हैं, लेकिन multiplication, proliferation, generation बहुत ही ज़्यादा है, तो it is benign growth, that is psychosis, but not a syphilis. So in previously mentioned genetic mutation cancer, it is advisable to prescribe on phenotypic simillimum and not genotypic simillimum. क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है, हमें उस प्रोसेस को स्टॉप करना है, क्योंकि बाकी बॉडी नॉर्मल है, ओनली ये जो प्रोसेस हो रही है सेल मल्टीप्लिकेशन की, हमें इसे स्टॉप करना है. इसीलिए हमें इन केसेस में, मोस्टली इन कैंसर जहाँ म्यूटेशन हो रहा है, जीन म्यूटेशन हो रहा है, उसमें हमें फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन देना है ताकि ओनली वो प्रोसेस स्टॉप हो जाए. आफ्टरवर्ड वी हैव टू प्रिस्क्राइब द GCS. So it previously mentioned genetic mutation cancer, it is advisable to prescribe on phenotypic simillimum and not genotypic simillimum. The change phenotypic simillimum is based on changes in generals, physicals and mentals after the onset of cancer with due respect to strong psychotic symptom which is not changed before and after. So according to Harrison's, there is 5 series of phenotypes occurring in cancerous growth and a possibility of changing of simillimum. Yes, तो क्लियरली सर ने यहाँ लिखा है कि वहाँ पे 5 सीरीज ऑफ फिनोटाइपिक ऑकरेंस. इसका मतलब हमें कैंसरस पेशेंट में अगर प्रिस्क्रिप्शन दिया और उसके बाद कुछ रिजल्ट मिला, पेशेंट अच्छा हो रहा है और बाद में रिकवरी स्टॉप हो गई, तो हमें हो सकता है उसमें मेडिसिन चेंज करना पड़े. यस, तो मोस्टली कैंसरस केसेस में 2 और 3 और 4, 5 रेमेडीज़ चेंज हो सकते हैं और चेंज करने का काम पड़ सकता है. सो दिस इज इन कीपिंग विथ ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय हैनीमन इन हिज एपोरिज्म वेयर ही मेंशन्स द ट्रीटमेंट ऑफ one-sided disease and disease with paucity of symptoms, but there is another type of cancer which is epigenetic and where genetic mutation does not takes place and only expressions of.
So genes is change. Epigenetic cancers are easy to cure. Here a genetic constitution simillimum based on original characters of constitution still work. Such cases are found in old age, and the prognosis with homeopathic treatment in such cases is better than genetic mutation cases. Yes. So this is finished the chapter number 32, genetics of cancer. Yes, तो इन 2 चैप्टर्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये हो नहीं पाएगा। तो हम कुछ जनरल डिस्कशन आज कर लेते हैं, क्योंकि 33 चैप्टर जो दिया है वो ओनली सर ने प्रैक्टिकल हिंट्स के लिए दिया है कि कुछ पेशेंट, अगर कुछ टिपिकल पेशेंट्स आपके पास आते हैं या फिर उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है, तो उसके लिए कुछ डिजीज़ के लिए, पेशेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल हिंट्स सर ने दिया है कि किस तरह से हमें हैंडल करना है। तो ये प्रैक्टिकल हिंट्स हम कल पढ़ेंगे। अगर आज आपको कुछ डिस्कस करना है जनरल, तो हम कर सकते हैं, हमारे पास 10-15 मिनट है, काफ़ी डिस्कशन हो सकता है। सो इफ यू वांट टू डिस्कस on this book, on chapters, on theory or on practical part, that is clinical part, या फिर कोई केसेस अगर आपको डिस्कस करना है तो हम 10-15 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं। यस यस, अगर कुछ प्रश्न आया तो पूछ सकते हैं। ओके, तो अनम्यूट कीजिए एंड हैंड राइज कीजिए। सर कंफ्लिक्ट ग्रुप जो फॉर्म कर रहे हैं उसमें क्या क्या मतलब है? एग्जैक्टली व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस अबाउट एवरीथिंग कंफ्लिक्ट में? हम लोग नया ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं ना कंफ्लिक्ट का। आप कल नहीं थे क्या? नहीं सर, सॉरी नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। तो कल जो लोग नहीं थे या फिर जो कल लेट आए थे, आज भी जो लोग लेट ज्वाइन हुए, उनके लिए मैं फिर से एक बार वो अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हम एक मतलब ये बुक अभी फिनिश होते आ रहा है, तो ये बुक के बाद हमें क्या स्टार्ट करना है। तो बहुत से बहुत लोगों की ये डिमांड है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट सीखना है। क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पे हमें रूब्रिक्स सिलेक्ट करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब हम स्टडी करेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट स्टडी ग्रुप में। तो उन सेशंस के लिए अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट स्टडी करना है तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। वो प्रोग्राम ऐसा है कि एक मिनिमम चार्ज जो मेंटेनेंस मुझे लग रहा है, जैसे कि एक स्टाफ उसके लिए है, उसके बाद यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस होते हैं, देन ये जो हॉल उसके लिए है, उसके बाद इंटरनेट, तो इसका एक नॉमिनल मेंटेनेंस चार्ज वो हमने उसके लिए रखा है, क्योंकि काफ़ी ये सब एक्सपेंसिव होते जा रहा है, क्योंकि आगे समर है और समर में कंटिन्यू इस हॉल में विदाउट एसी हम बैठ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए एक्सपेंसेस तो आना ही है। तो उसके लिए ओनली, इसमें से कोई इनकम नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द मेंटेनेंस चार्ज। तो उसके लिए हमने पर कैंडिडेट 5000 रुपीज़ की फ़ीस रखी है, और उसके साथ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं कि हर इसमें जितने भी डेलीगेट्स होंगे, उन डेलीगेट्स के लिए, हर डेलीगेट्स के लिए हमने एक केस, उनका एक पेशेंट जो उनके पास ट्रीटमेंट कर रहा है, क्रॉनिक ट्रीटमेंट कर रहा है और बहुत दिनों से ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन उसमें क्योर नहीं हो रहा है, कहीं तक भी केस अटक गई है, निकल नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, या फिर पेशेंट भी ऐसे कंडीशन पे आ गया है कि अब अगर हो नहीं रहा है तो हम
डॉक्टर चेंज कर लेते हैं या फिर ऐसी एक कंडीशन आ जाती है, हर किसी के प्रैक्टिस में होता है। तो ऐसे केसेस के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हर उस डेलीगेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपना एक पेशेंट इस लाइव सेशन में ला सकते हैं। तो हम उसे लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे और वो केस सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी हम उसके साथ दे रहे हैं। तो 5000 इट इज़ बहुत ही नॉमिनल चार्ज है और एक आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है। तो उसके लिए वो ग्रुप फॉर्म हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट स्टडी ग्रुप। उसमें बहुत से लोगों ने, क्योंकि उसके लिए लिंक हमने भेज दिया व्हाट्सएप लिंक, उसमें बहुत से लोग ज्वाइन भी हुए हैं। लेकिन उन सभी लोगों से एक निवेदन है कि भाई उसके साथ साथ हमने उसमें QR कोड भी भेजा है। तो आप उस QR कोड पे पेमेंट करके उस पेमेंट की रिसिप्ट सेंड कीजिए, ताकि हम आपको जो दूसरा पेड ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर देंगे और उस पेड ग्रुप में ही उस सेशन की लिंक आएंगी जिस पे आप ज्वाइन करके वो पढ़ाई कर सकते हैं। यस डॉक्टर। तो लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट जब भी पढ़ेंगे भी मैक्सिमम केसेस में अंडरस्टैंडिंग या तो उसमें कुछ हेल्प आउट होने वाला है। यस, इसीलिए हमने वो रखा है कि आप लोग एक केस उसमें ला सकते हैं। अगर वो एक्चुअली सेशन चलेगा 365 डेज, कंप्लीट 1 ईयर। तो आप सोचिए अगर आप उसमें एक एक केस भी लाते हैं तो कितने सारे केसेस उसमें डिस्कस हो सकते हैं। और उसी मतलब वो प्रैक्टिकल पार्ट भी हो जाएगा और थेरी पार्ट भी हो जाएगा कि थेरी हम सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस आइडिया को, उस अटैचमेंट को, उस मेंटल इमोशनल फीलिंग को किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है रेपर्टरियल लैंग्वेज में, तो वो भी उसमें सीखने को मिलेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ें उसमें से सीखने को मिलेगी और अगर केस है तो हमें देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। यस। कुछ केसेस और 365 डेज, सॉरी फॉर इंटरव्यू, 365 डेज का है। तो स्टार्टिंग में जो केसेस आएंगे तो 1 साल तक उनके फॉलोअप चलेंगे तो रिजल्ट भी हमें मिलेंगे। तो रिजल्ट की भी उसमें देखने को मिलेंगे। वही पेशेंट के फॉलोअप्स जब हम लेंगे तो रिजल्ट भी पता चलेगा कि हमने जो एनालिसिस किया था, जो रेपर्टराइज किया, जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया वो राइट है कि रॉन्ग है, ये भी पता चलेगा। यस। ये अगर आप लोग सही में उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये बहुत ही एक्सलेंट सेशंस होंगे, बहुत ही एक्सलेंटली आपको सीखने को मिलेगा। यस। सर इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है क्या? सॉरी, वो फैसिलिटी नहीं है क्योंकि 5000 इट इज़ अ वेरी मिनिमम चार्ज। देखो मेरी कंसल्टिंग फीस ही 5000 है और मैं एक पेशेंट के 5000 लेता हूँ और इसमें आपको अगर आप केस लाते तो उसके 5000 पड़ेंगे। मतलब आपको तो सीखने को तो फ्री मिल रहा है ना। यस। तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, आप इजीली पेड कर सकते हैं और अगर 1 टाइम ही आपको पेड करना है क्योंकि ये कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको सीखना है, अब इतने 1 साल से हम ये क्लासेस ले रहे हैं, कभी ये नौबत नहीं आई, लेकिन कुछ बातें होती है जैसे कि स्टाफ है, स्टाफ मेंटेन करना है, इसके लिए एक पर्सन कंटिन्यूस लगता है ना। आप समझ सकते ये बातें। तो ये एक्चुअली ऐसा समझे कि हम सब मिलके ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा तो। राइट? एम आई राइट डॉक्टर कंसे? यस सर। यस। यस। और किसी को कुछ पूछना है?
सर फिनोटाइप जिनोटाइपचं काय सांगा. फिनोटायपिक प्रिस्क्रिप्शन, जिनोटायपिक प्रिस्क्रिप्शन. जिनोटायपिक प्रिस्क्रिप्शन म्हणजे ते की प्युअर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्युअर जेनेटिक सिम्पटम्स, प्युअर जेनेटिक पिक्चर ऑफ दॅट पेशंट, जिथे कुठलाही म्युटेशन झालेलं नाही, काही नाही, कुठलाही ॲबनॉर्मल जीन्स नाही आहे, म्हणजे तिथे कम्प्लिटली नॉर्मल जीन्स आहेत आणि फक्त डिझीज्ड झालेले आहेत. ते पिक्चर आपल्याला घ्यायचं आहे. दॅट इज द जेनेटिक सिम्पटम्स और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स. त्या बेसवर जे आपण प्रिस्क्रिप्शन देतो, उस बेस पे जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज द GCS जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम और प्रिस्क्रिप्शन. और जो फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन है वो तब होता है जब जीन म्यूटेड होता है, एक जीन के बजाय बदले में दूसरा जीन वहाँ पे आ जाता है, एबनॉर्मल जीन वहाँ पे आ जाता है. तो एबनॉर्मल चीज़ जब भी कुछ होती है ना, कि जैसे कि हम 5 फ्रेंड है एक जगह बैठे और एखादा उसमें कोई डिस्ट्रक्टिव एबनॉर्मल और कुछ मतलब डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी का पर्सन आके बैठ जाता है, तो पूरा एटमॉस्फेयर, 5 लोगों के रिएक्शन वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा. मतलब जो चेंज हो गया, अभी पहले 5 लोग बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये कुछ अननोन पर्सन आ गया या फिर ऐसा पर्सन आएगा जो एबनॉर्मल है, और वो आने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, 5 की रिएक्शन अलग अलग आएंगे. अब फिनोटाइपिक मतलब जो ये बाद में जो आया उसके बाद जो इनके रिएक्शन आ रहे, जो रिएक्शन चेंज हो गए, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, उसे हमें करेक्ट करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को वहाँ से निकाल देना पड़ेगा. और हम अगर उस पर्सन्स को निकाल देते हैं तो उस पर्सन्स के क्या सिम्टम्स है, वो पर्सन कैसा है, बहुत तगड़ा है, बहुत करेजियस है, डिस्ट्रक्टिव है, बहुत भयानक प्रवृत्ति का है, तो हमें उस तरह से उसे निकालने के लिए उस तरह से विपन्स वहाँ यूज़ करने पड़ेंगे. उस तरह से हमें मेंटालिटी बनानी पड़ेगी कि भाई इससे लड़ना है तो इसके जैसा बनना पड़ेगा. इसीलिए उसके जैसा बनने के लिए ही कहते हैं फिनोटाइपिक पिक्चर. तो फिनोटाइपिक मतलब चेंज पिक्चर ऑफ दैट पेशेंट, वो हमें लेके उसे ट्रीट करना है ताकि वो जो म्यूटेटेड जीन्स है वो करेक्ट हो जाए और उसका कैंसर ठीक हो जाए, उसका डिजीज ठीक हो जाए. दैट इज द फिनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम. यस यस डॉक्टर राउत. यस डॉक्टर राउत. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर जसं याच्यात म्हटलं आहे इपिजेनेटिक आणि जेनेटिक न्यूट्रिशन, ह्याच्यात जो what is there is another type of cancer which is epigenetic and where the genetic mutation does not takes place. तर आपण जसा विदाउट इन्व्हेस्टिगेशन जसा एक्सप्रेशन जसा आलं तरच म्हणजे विदाउट इन्व्हेस्टिगेशन आपण इपिजेनेटिक जो कॅन्सर आहे तो ओळखू शकतो का? सिरियस डिझीजमध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशनची हेल्प घ्यावंच लागेल, इन्व्हेस्टिगेशन्स करावं लागेल, त्याच्याशिवाय तुम्हाला माहीत नाही पडणार, कन्फर्म नहीं होणार. आणि अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है तो कंप्लीट नॉलेज लो, कंप्लीट डायग्नोज करो, कंप्लीट कंडीशन अगर मिलती है तो एग्जैक्टली हमें रूब्रिक्स भी लेते आएगी. अगर हमें कुछ पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स लेना है, कुछ पर्टिकुलर रूब्रिक्स लेना है, कुछ फिजिकल रूब्रिक्स लेना है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है. यस. आणि प्रत्येक जसं आता एखादी रेमेडी थोडा रिलीफ आहे त्याला पेशंटला म्युटेशनल केसेसमध्ये, मग परत स्टॉप झाली म्हणजे रिकवरी, तर परत आपल्याला दुसरं मेडिसिन चॉईस करायला लागेल. हाँ, ऐसे केसेस में, क्योंकि हैनेमन ने भी बोला है और विजयकर सर ने भी बोला है और हमने जो सर के यहाँ पे केसेस भी देखे, तो बहुत बार मेडिसिन चेंज होती है और चेंज करने का काम भी पड़ता है, रिपीटेशन का भी काम पड़ता है इन फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन में. तो ये सबसे पहले अगर हमने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और कुछ दिन पेशेंट बहुत अच्छा रहा, उसके बाद एज इट इज़ हो रहा है, तो फर्स्ट हमारा काम होता है कि फर्स्ट वो रेमेडी एक बार रिपीट करें. अगर रिपीट करने के बाद भी नो चेंज आता है तो देन वी हैव टू चेंज द रेमेडी. यस.
ओके सर, थैंक यू। सर ऐसे वक्त में हायर पोटेंसी भी ट्राई कर सकते हैं? मोस्टली कैंसरस केसेस में सर ने 200 ही देने के लिए कहा है, और आई थिंक मोर सिपिलिटिक होते हैं, इसलिए 200 इज़ द बेस्ट पोटेंसी। जहाँ वाइटलिटी एकदम लो हो गई है, मतलब जो हम बोलते हैं ना 3rd 4th स्टेज ऑफ कैंसर, जहाँ कंप्लीटली एनर्जी लॉस्ट हो गई, कंप्लीटली अब पेशेंट के अंदर कुछ बचा नहीं है, vitality become completely low, then we have to use the higher potency. Yes. सर ये ग्रुप कब स्टार्ट होने वाला है, जो नया कॉन्फ्लिक्ट कब से स्टार्ट करेंगे? जैसे आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। यस सर, ये ग्रुप कंटिन्यू रहेगा कि बंद हो जाएगा? ये ग्रुप बुक होने के बाद इस ग्रुप के जगह ही, इस टाइम पे ही वो ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। सर, जो फ्रीक्वेंट इनकाउंटर जो बुक है उसका डिस्कशन नहीं होगा? फ्रीक्वेंट एनकाउंटर इट इज़ अ प्योर साइकोटिक बुक, और उसमें पूरा साइकोसिस है, तो हम सोच रहे कि पहले कॉन्फ्लिक्ट्स ले लेते, उसके बाद वो बुक लेंगे। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट का ही 1 ईयर तक चलेगा, 1 ईयर से भी ज़्यादा चलेगा। हेलो सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून। सर, वो मेरे पास जीपे नहीं है, आप बैंक अकाउंट डाल देते तो अच्छा होता। बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोन पे, जीपे, गूगल पे। नहीं सर, बैंक अकाउंट मेरे को चाहिए, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। ओके, अकाउंट डिटेल्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। यस, शर्मा मैडम अकाउंट डिटेल्स डाल दीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो। यस, हेलो सर। यस प्लीज। सर यस, बोलिए ना। conflicts and homeopathic remedies, whether how to combination नहीं, homeopathic remedies and conflicts. होम्योपैथिक रेमेडीज एंड कन्फ्लिक्ट्स। होम्योपैथिक होम्योपैथिक रेमेडीज एंड कन्फ्लिक्ट के बजाय अगर हम ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि कन्फ्लिक्ट पे कोई मेडिसिन नहीं है कि भाई ये कन्फ्लिक्ट है फिर उसके मेडिसिन बता दो तो ये थेरापेटिक हो जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं है। हमें कन्फ्लिक्ट इसलिए चाहिए कि हमें पॉजिटिव फैक्टर ढूंढना होता है। पॉजिटिव फैक्टर जब मिलता है तो उसके बाद हम देखते हैं डिस्पोजिशन एंड रिएक्शन। तो ये 3 चीजें मेन होती है प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, और उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है दैट इज द मेडिसिन। तो कॉन्फ्लिक्ट और मेडिसिन का यही रिलेशन है कि जब तक हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा तब तक हम उसके डिस्पोजिशन पे भी नहीं जा सकते और रिएक्शन पे भी नहीं जा सकते। और हमें मेन जो बेस होता है प्रिस्क्रिप्शन का दैट इज द पॉजिटिव फैक्टर, वो नहीं मिलेगा। इसलिए जो डॉक्टर हैमर ने थ्योरी निकाला दैट इज जर्मन न्यू मेडिसिन, उसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट दी है, लेकिन उसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा, उसमें 5 बायोलॉजिकल लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सर ने बोला है कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सर ने जो पढ़ाया, सर ने जो कॉन्फ्लिक्ट दिए हम वो पढ़ेंगे। यस, क्योंकि आप हर डिजीज का कॉन्फ्लिक्ट अगर हैमर थ्योरी में जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे बॉडी की एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करना जरूरी है, उसके बाद 5 बायोलॉजिकल लॉ पढ़ने कंपलसरी है, उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है। यस,
ओके सर। तो हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, हम खाली कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे कि अगर नोज का प्रॉब्लम है, ईयर का प्रॉब्लम है, आई का प्रॉब्लम है, तो किस से रिलेटेड है, कौन से पर्सन से रिलेटेड है और कौन सी उसके पीछे इमोशनल पैथोलॉजी, इमोशनल अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को लेके हमें रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है और रूब्रिक्स लेना है। दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। हेलो सर। यस सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे पास एक पेशेंट है आफ्टर चाइल्ड बर्थ 40-80। सबसे पहले ये बोलो कि मेरे पास बहुत पेशेंट है। मेरे पास एक पेशेंट है नहीं, मेरे पास बहुत पेशेंट है। उसमें से एक पेशेंट का मैं बताता हूँ, बोलिए। चाइल्ड बर्थ। हाँ सर आफ्टर चाइल्ड बर्थ 17-18 साल के बाद बहुत लैक्टेशन हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? चाइल्ड बर्थ हो गया सर। हाँ चाइल्ड बर्थ हो गया, 17-18 साल के बाद लैक्टेशन हो रहा है। नहीं, मेरे को सुने नहीं आ रहा। आप क्या हो गया 17-18 साल बाद? लैक्टेशन हो रहा है सर। आपके पीछे कुछ नॉइस आ रहा है जिससे आपका आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। लैक्टेशन हो रहा है। लैक्टेशन हो रहा है सर। लैक्टेशन किसे, मदर को कि बेबी को? मदर को। आपका नेट बराबर नहीं है। आपका एक वर्ड सुने आता है और दूसरा गायब हो जाता है। सर वो बोल रहे हैं कि बच्चा होने के 18 साल बाद उनके मदर को लैक्टेशन हो रहा है। मदर को लैक्टेशन हो रहा है। आपको चाइल्ड बर्थ 15-16 साल के बाद। हाँ तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नहीं, इसका कॉन्फ्लिक्ट निकालने के बजाय पहले पैथोलॉजी देख लो क्या है। मेमोग्राफी करके पैथोलॉजी देख लो, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि वो प्योर मिल्क है या फिर कुछ डिस्चार्ज है। कपड़े की हेलो। हाँ मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा है। बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहे कि कपड़े गीले होते हैं मतलब दिल की नो कपड़े गीले होते मतलब मिल्क है। उसका वो ये उनका नहीं, मोस्टली वो डिस्चार्ज होता है, थिक स्ट्रिंजी डिस्चार्ज होता है। इट इज़ नॉट अ मिल्क। ये बहुत से लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो सॉल्व हो जाता है मेडिसिन से। उसमें हमें मतलब कोई पेशेंट्स में वो कुछ डिजीज़ भी हो सकता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे मेमोग्राफी करना बहुत ज़रूरी है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कौन से ब्रेस्ट से वो है, राइट है ना। देन मेमोग्राफी में ये समझ में आएगा कि ब्रेस्ट के कौन से सेल से वो सिक्रीशन हो रहा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फिर उस क्वाड्रेंट से रिलेटेड पर्सन से क्या प्रॉब्लम है, क्या उस पर्सन के साथ कुछ अनबन है या फिर जो भी है, तो उससे वो रिलेटेड रहेगा कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए हमें मेमोग्राफी करना जरूरी है। यस क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग पर्सन्स है। लेफ्ट साइड के अलग पर्सन है, राइट साइड के अलग पर्सन्स है, इसलिए वो जानना बहुत जरूरी है। और प्योर मिल्क है तो इट इज ओनली रिलेटेड टू चाइल्ड। यस Wants to nurture the child. yes or any more questions?
Okay, so should I finish here? Okay, so thank you very much. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you, sir. Yeah, bye bye, see you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you.